تخت پنجاب پر کون بیٹھے گا؟ فیصلہ ہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ وہی بنے گا جسے اپوزیشن نامزد کرے گی۔ مفاہمت کے بادشاہ کا بڑا دعویٰ۔ اسلام آباد میں اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران آصف زرداری نے کہا کاف لیگ کا رویہ سمجھ سے باہر ہے۔ رات 12 بجے مجھے مبارکباد دینے آتے ہیں، صبح کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کاف لیگ والے کیوں ادھر چلے گئے۔ کچھ دوست پاور اور ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں۔ اقتدار تو آتا جاتا رہتا ہے، اب پرویز الہی نے دیر کر دی ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب وہی ہوگا جس کا فیصلہ اپوزیشن کرے گی۔ نمبرز گیم صرف ہمارے پاس ہے۔ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے۔ پرویز الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں، میری نظر میں پی ٹی آئی ان کو بنا نہیں سکتی، وہ ووٹس نہیں ہیں ان کے پاس پنجاب اسمبلی۔ یہ ہم سب اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف منسٹر کے لیے نامنیٹ کریں، اور جس کو اپوزیشن بنائے گی وہ بن جائے۔ نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں، نمبرز ہمارے پاس ہیں۔ پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی چیز۔ عمران خان کا یہ آخری ہفتہ ہے، جہاں تک بھاگنا ہے بھاگ لیں۔ عمران اسماعیل میں ہمت ہے تو سندھ میں گورنر راج لگا کر دکھائیں۔ بلاول بھٹو نے چیلنج دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کی کسی بھی ڈیمانڈ پر انکار نہیں کیا اور نہ کریں گے۔ کل بلوچستان عوامی پارٹی نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا۔ آج اسلم بھوتانی کے شکر گزار ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم عمران خان کو چیلنج کرتے ہیں وہ خط سامنے لائیں۔ عمران خان کی جھوٹے الزامات ہیں اور یہ خط کی بات ہے۔ پورا اپوزیشن نے چیلنج کیا، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ قوم کے سامنے لے کر آئے، ثابت کرو، لگا کے دکھائے۔ کل نہیں آج لگا کے دکھائے، ہمت ہے تو کرو۔ تحریک عدم اعتماد پر نمبر گیم میں برتری کے لیے اپوزیشن کی پیش قدمی جاری ہے۔ کپتان کی ایک اور وکٹ گرا دی گئی ہے۔ بلوچستان کے آزاد رکن قومی اسمبلی اسلم بھوتانی کا عدم اعتماد کے لیے آصف زرداری کا ساتھ دینے کا اعلان۔ کہا جہاں زرداری صاحب جائیں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور زرداری صاحب کے ساتھ ہوں، اپوزیشن نہیں، میرے لیے زرداری صاحب باقی، جہاں وہ جائیں گے میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ جس دن ووٹنگ ہوگی تو اپوزیشن کے نمبرز دیکھ کر سب حیران رہ جائیں گے۔ مسلم لیگ نواز کے رہنما ایاز صادق کا دعویٰ، کہتے ہیں حکومت کو بڑے مارجن سے شکست ہوگی۔ جس دن ووٹ ہوگا حیران کن نمبر آپ کے سامنے آئے گا، جو حکومت کے خلاف ووٹ کریں گے، حیران کن نمبر آئے گا آپ کے خلاف۔ یہ میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور باقی جوائنٹ اپوزیشن کے قائدین کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ نمبر اور تعداد کتنی بڑی ہوگی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے مستعفی وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی ملاقات میں چیئرمین سینٹ کے دفتر میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں طارق بشیر چیمہ کے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے گلے شکوے ہوئے۔ ملاقات میں مزید کیا گفتگو ہوئی اس پر بات کر لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف نیوز علی شیر سے۔ جی علی۔ جی بالکل، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے سابق وفاقی وزیر یا مستعفی وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ ویسے روٹین کی ملاقات تھی، کوئی خصوصی کسی پلان کے تحت ملاقات نہیں تھی۔ انہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھے تو وہ ان کے چیمبر میں چلے گئے طارق بشیر چیمہ، تو وہاں پہ گفتگو ہوئی اور ذرائع کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے گلے شکوے کیے کہ انہوں نے اپنے دادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا، اور وہ بطور وفاقی وزیر بہت سے مشورے ایسے لے کے گیا وزیر اعظم کے پاس جس سے ہاؤسنگ سیکٹر میں بہتری آ سکتی تھی، لیکن ان کی منظوری نہیں دی گئی۔ اس طرح کے جو گلے شکوے ہیں کہ دادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، عزت نہیں دی گئی، اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ طارق بشیر چیمہ نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ساتھ کی ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے کہ قاسم سوری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے با پارٹی کے؟ جی بالکل، قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کی گزشتہ رات ملاقات جو ہے وہ ہوئی اسرار ترین سے، جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور دو اور وفاقی وزراء ہیں جن کی روبینہ عرفان جو ہے ان کے ساتھ ملاقات بھی، ایک کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، اور آج بھی ملاقاتوں کا امکان ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ جو باپ پارٹی ہے جو کل تقسیم ہوئی تھی وہ آج یا ایک دو دن میں دوبارہ تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ روبینہ عرفان جو ہے اس نے کچھ لوگوں سے یہ بھی ذکر کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ تو ارکان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک یہ پروگرام بنا کے پریس کانفرنس کرنی ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھے ان کے ساتھ ان کو انکار نہ کر سکی اور یہاں پہ پریس کانفرنس کرنے آ گئی۔ اسرار
तरीन और रुबीना अरफान जो है वो अपोजिशन के जो रहनुमा है उनके साथ ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। ताहम इनकी वापसी का इम्कान है। इस तरह पार्टी की वापसी का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अली शेर। मरासला तहरीक एतमाद आने से पहले का है। अभी ये मरासला सिविल मिलिट्री क़यादत तक महदूद है। काबीना में भी हर किस्म को इस खत का इल्म नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद उमर की वजाहत, कहते हैं वज़ीर आज़म का बयान करदा मरासला कौमी राज है। मरासले में बराह रास्त लिखा है कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो नताइज खतरनाक होंगे। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद आपस में जुड़े हुए हैं। नवाज शरीफ की मुलाकातें वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा हैं। पीडीएम की सीनियर क़यादत भी गाफिल नहीं। वो कहते रहे हैं कि सारे मामला तय पा गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मरासले में क्या लिखा है। कम से कम वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। इस मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं, खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। पीडीएम की सीनियर लीडरशिप इस बात से लाइल्म नहीं। कौन से ऐसे किरदार हैं जो इस खत के पीछे हैं? नवाज शरीफ। देखिए, हमने तो कहा ना, जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं अपोजिशन की तरफ से, वो तो नवाज शरीफ हैं। वो बाहर बैठे हुए, उनकी मुलाकातें होती रही हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी होती रही हैं, और किन किन ममालिक के एजेंसियों के साथ होती रही, वो भी आपको सब पता है। कौमी सलामती के लिए अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फौज मुकम्मल तौर पर वो करेगी। हुकूमत ने धमकी आमेज मुरासले में नवाज शरीफ को मुलव्विस करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बैरूनी साजिशें नई बात नहीं। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को पाकिस्तान का बड़ा होने की हैसियत से ख़त दिखाने का फैसला किया ताकि उन्हें ख़त से जुड़े मामलात का पता चल सके। इमरान खान की मकबूलियत के बायस बैरूनी नासिर खौफजदा है, इसीलिए कह रहा था कि नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दिया जाए। इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं तो वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन जाते हैं। उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। जब आपने नवाज शरीफ वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं जिसमें उनकी इजरायली सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं, उसके बाद ये जो खत हमें आया है इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने कहा है कि चौधरी बिरादरान हमारे साथ थे और हैं। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तहरीक अदम एतमाद से एक रोज कल साजिशी खत में तहरीक अदम एतमाद का जिक्र था। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहरीक इंसाफ की खातून जो है रुकन कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा आलिया हमजा साहबा के साथ मौजूद हूँ। हमने पहले इनको कहा था खान साहब इनको रुलाएंगे, लेकिन अब इनको भगा भगा कर खान साहब रुलाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से जरदारी साहब की छड़ी हमने छुड़वा दी है, किस तरह से हमने व्हील चेयर छुड़वा दी है शहबाज शरीफ साहब की, और कल की जलसी भी आपने देख ली है। कल किस तरह से मरियम बीबी जो हैं वो फजलुर रहमान साहब के मदरसे के बच्चों को तालीमात दे रही थी। आज जो ख़त दिखाया गया है और जिस शख्स का जिक्र किया गया है, क्या हम ये भूल सकते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के मुहिबुल्लाह से मिला था जिसने पाकिस्तान के बारे में किस तरह के अल्फाज कहे थे, वो भी वो कहते थे मुल्की मफाद में मिला है। क्या हम ये भूल सकते हैं कि बीजेपी का लीडर वहाँ बैठ कर नवाज शरीफ के बारे में ये बात कर रहा था कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर तो चाय बेचता है, इनका प्राइम मिनिस्टर तो इनकी ज़मीन को बेचता है। तो हमें दोबारा अपने अवाम को, अपने अरकान पार्लियामेंट को ये कहना है मुल्क के मफाद में फ़ैसला करें, मुल्क के लिए फैसला करें। अगर इमरान खान इतना बैरूनी ताकतों को खटता है तो ये क्यों मुल्की गैर मुल्की एजेंडा के ऊपर चलना चाह रही है, ये क्यों उन की बातों को तकवीयत देना चाह रहे हैं। वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये जंग इमरान खान जीत चुके हुए हैं, लेकिन मैच आखिरी बॉल तक जाएगा। जी तहरीक अदम एतमाद का मामला, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 24 घंटों में चौधरी परवेज़ इलाही से दूसरी मुलाकात। मोहनस इलाही भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल समेत वफाक में अदम एतमाद के हवाले से बातचीत की गई। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही को उस्मान बुज़दार की जगह वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान किया था। हुकूमती इत्तेहादी और मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम के दरमियान मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए बैकडोर राब्ते जारी हैं। इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजेस में चौधरी वजाहत और एमक्यूएम के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान मुलाकात हुई।
इस दौरान मुस्तकबिल की सियासी माहौल पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक चौधरी वजाहत हुसैन ने MQM क़यादत को चौधरी शुजाअत हुसैन का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली रफ़ाकत अली शाह गिलानी की मुलाकात हुई। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब में बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। रफ़ाकत अली शाह गिलानी ने चौधरी परवेज़ इलाही को अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। इस पेशरफ्त पर बात करते ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, इस वक्त सबसे ज़्यादा मसरूफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही लग रहे हैं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पंजाब समेत वफाक में लम्हा ब लम्हा बदल सियासी सूरत हाल पे तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सैयद रफ़ाकत अली शाह गिलानी ने चौधरी परवेज़ इलाही को अपने मुकम्मल तावान की यकीन दहानी करवाई। चौधरी परवेज़ इलाही का इस मौके पर कहना था कि अगर पंजाब के वज़ीरा के तौर पर वो मुंतखब हुए तो पंजाब में तरक्याती काम जो हैं उनको तरजीही बुनियादों पर कराया जाएगा और सबसे बड़ी पहली तरजीह गुर्बत के खात्मे की होगी और इसके अलावा अशिया खुर्दनोश की कीमतों और महंगाई की जो महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है उसको कम करना उनकी पहली तरजीह होगी। जी बहुत शुक्रिया अयाज शुजा। तमाम फैसले मेरी मुशावरत, मर्जी और रजामंदी से हुए हैं। चौधरी शुजाअत हुसैन ने कहा है तमाम सियासी फैसलों को उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है। जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो गलत हैं। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुनासिब बात नहीं। अपने बयान में चौधरी शुजाअत हुसैन ने सियासी सूरत हाल के तनाजुर में ख़ानदानी इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनका ख़ानदान और जमात एक पेश पर है। वज़ीर इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेंगे। हतमी फैसला 3 तारीख को होगा। सियासी खेल आखिरी घंटे तक जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा इमरान खान को हटाने के लिए आलमी सतह पर साजिशें हुई, बाहर से सरमायाकारी करने वाले नाकाम होंगे। शेख रशीद ने एक बार फिर जल्द इलेक्शन की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि MQM पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहादी बरकरार रहने या ना रहने से मुतल्लिक ऐलान बड़ा फैसला कुन होगा। 3 तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा, मुकाबला करेगा और हम उसके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने इंटरनेशनल साजिशें की हैं, इमरान खान को हटाने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इंशाअल्लाह नाकाम होंगे। और मेरी दुआ है कि MQM भी हमारे साथ आए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्या फ़ैसला होता है।